Hey, you all. Hope you're doing good. If you haven't watched me before, I am Shagun, and finally, I am at Kachi Dham. And I just wanted to quickly come here and share my experience of how I felt attracted to this place. And yeah, so before starting, I just wanted to tell you I am a very spiritually strong person. I do not get very influenced by other people and start believing on certain things. In fact, until and unless I experience the same thing. So my belief in Kachidham was not because of the famous personalities and other people coming here, but it was something very personal to me, which I have come upon here to share because it's a very interesting and moving story. So, if you want to know in detail, just continue watching this video and don't forget to subscribe to my channel. Okay, so the story starts with year 2024, that is last year. I went to a temple randomly in Noida, और वहाँ पे मुझे एक पंडित जी मिले. He saw me and he called me and he asked me, do you mind sharing your date of birth and can I see your hand for the rekhas and all? So I said, okay, go ahead. So that time he told me कि आपके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा नज़र का साया है एंड ऑल्सो योर कुंडली सेज देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद राहु एंड केतु. आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली बिकॉज मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम एंड मी बीइंग मी I came home and just forgot it over sleep. And in fact, he told me three, four remedies. He said that कि कोई भी ग्रह का कोई भी प्रॉब्लम हो सो द ओनली सोल्यूशन इज़ हनुमान जी. एंड अगर आप ट्राई करो, so sorry, there is some background noise going on, so please ignore that. सो ही सेड कि ग्रह का कोई भी चीज़ हो ना, द ओनली सोल्यूशन इज़ हनुमान जी. वो सारे ग्रहों को शांत करने वाले हैं. सो आप ट्राई करो कि सैटरडे संडे, सॉरी, आप ट्राई करो कि ट्यूसडेज एंड सैटरडेज यू गो टू हनुमान टेम्पल, and on every Tuesdays and Saturdays don't eat non-veg, and also try to recite Hanuman Chalisa on daily basis, which is very important for you right now as per your defects in the kundli. And me being me, I went home and I just forgot all these things क्योंकि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो डेज में बिलीव करती थी कि लाइक ट्यूसडे नहीं खाना नॉन वेज एंड मंडे नहीं खाना एंड like this. I never used to believe on this. So cut to few months and something I was shaken with when something happened to me health wise, which I am still not comfortable sharing it over online. So just to give you a brief idea, something very uh, life threatening happened to me last year. So in, I was, I mean, daily मेरा ऐसा रहता था कि doctors were also clueless about it. And I, uh, being a cancerious, I am a huge overthinker and मेरे पास मेरा माइंड मल्टीपल थॉट से हमेशा फिल्ड रहता था. सो व्हाट मैंने क्या सोचा रैंडमली, आई वाज नॉट, I not in my mind I thought about that पंडित जी and his things. मैं बस ऐसे ही उठाई और मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगी एंड दैट गेव मी रियली अ पीस ऑफ माइंड और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा. एंड मैं फिर डेली पढ़ने लगी बिकॉज डेली कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आती रहती थी रिलेटेड टू माई हेल्थ. सो हनुमान चालीसा ऑलवेज पुट मी ऑन पीस. तो ऑल्सो what happened is कि ऑटोमेटिकली मैं हर ट्यूसडेज को और सैटरडेज को हनुमान मंदिर जाने लगी टू डोनेट थिंग्स टू पुअर पीपल. ना हर ट्यूसडे और सैटरडे क्योंकि मैं हनुमान मंदिर जाती थी तो ऑटोमेटिकली मेरा उस दिन नॉनवेज खाना बंद हो गया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ओ अब टेम्पल जाना है तो चिकन नहीं खा के जाते या एग नहीं खा के जाते. और ऐसे ऐसे में जो पंडित जी ने तीनों चीज़ें मुझे करने को बोली थी, बैक ऑफ द माइंड मेरे बिल्कुल भी नहीं था, बट आई instinctively started doing all those. So खुद से मतलब मैं ये सब करने लगी. मैं हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी. मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे हनुमान मंदिर जाने लगी.
Now the question is, now the chapter 3 starts with how I came across कैची धाम मंदिर. So उस टाइम तक मेरे को बैक ऑफ द माइंड एक आइडिया था कि हाँ, एक कैची धाम है जहाँ पे ये विराट कोहली और ये सब जाते थे. मेरा इम्प्रेशन अभी तक वो था. मैं बहुत फर्म बिलीवर नहीं थी, ना ही मैंने यहाँ के बारे में कुछ बहुत रिसर्च किया था. सो व्हाट हैपेंड इज़ कि I suddenly started seeing too many reels about it. तो मेरे को लगा कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ए आई, एंड आई हैव सीन वन वीडियो, दैट्स वाई मेरे को उससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ आ रही हैं. तो ठीक है, फिर एज़ यूजुअल एक दिन मैं हनुमान मंदिर गई एंड वहाँ पे नीचे मुझे बाबा जी की फ़ोटो दिखी. सो तब मेरे माइंड में मैं अटेंशन देना स्टार्ट किया कि कैसे ये रिलेटेड है टू हनुमान जी. एंड देन आई स्टार्टेड गूगलिंग अबाउट इट, और फिर मुझे और भी ज़्यादा रील्स आने लगी रैंडमली. मैं इंस्टा स्क्रॉल करती थी या फेसबुक स्क्रॉल करती थी, मुझे उन्हीं के पेजेस और उन्हीं के पोस्ट दिखने लगे. सो देन आई एक्चुअली स्टार्टेड पेइंग अटेंशन, एंड तभी भी मुझे ये लगा इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम वॉचिंग दोज रील्स, दैट्स वाई मुझे एआई के थ्रू वही रील रिकमेंडेशन हो रही है. कुछ टाइम बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि आई वॉज एक्चुअली अमेज्ड. मैं जब भी कुछ भी, मेरे को जो भी थॉट्स आते थे ऑन द डेली बेसिस, मेरे को उसका आंसर उस रील्स में मिलता था. एंड आई वॉज ऑल्सो टू द शॉक ऑन बिकॉज ऑफ दिस. मतलब मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था. लाइक वन डे मैं बेड रेस्ट पे थी बिल्कुल, एंड मैं एक एग्जांपल देकर करती हूँ. मैं आई वाज, डॉक्टर ने मुझे टोटली बेड रेस्ट पे कर दिया था और मैं मंदिर भी नहीं जा पा रही थी ट्यूसडेज. हाउएवर मैं रेगुलर बेसिस पे ट्यूसडेज को मंदिर जाती थी, तो मैं नहीं जा पाई थी. आई वाज रियली अपसेट अबाउट इट, एंड मैंने अपने मन में सोचा था कि क्योंकि बिकॉज मेरे हर ओवर थिंकिंग का, जो भी मेरे को माइंड में रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, मेरे को सबका जवाब बाबा दे रहे हैं. तो मैं ज़रूर एक बार अपनी लाइफ में एक बार कैची धाम ज़रूर जाऊंगी. बट मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत ही अनसर्टेन थी. तो तभी मुझे एक पोस्ट दिखा कि मुझे पता है तुम मेरे पास आना चाहते हो बट तुम नहीं आ पा रहे हो, बट कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. ये एक एग्जाम्पल है, एंड ऐसे मुझे बहुत सारे रिलेटेबल रील्स दिखते थे. जब एक बार क्या हुआ, मेरी ऐसी हेल्थ कंडीशन थी, जब डॉक्टर्स को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तब मुझे ये पोस्ट दिखा था कि मुझे पता है कि टाइम ख़राब चल रहा है, बट ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो, ये एक दिन सब ठीक हो जाना है. और ऐसे कर करके मुझे हिम्मत मिलने लगी, और इससे मैं कैची धाम की तरफ और बाबा की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और सबसे पहला मेरा थॉट था, जब मैं बिल्कुल भी अच्छे से फिट हो जाऊंगी ना, मैं ज़रूर कैची धाम आश्रम आके एक बार विजिट करूंगी और यहाँ पे मत्था टेकूंगी. बिकॉज मेरे हार्डेस्ट टाइम में कैसे बाबा ने मेरा साथ दिया, वो था ये मेरा इंसिडेंट पूरा. एंड गेस ये एक स्टोरी थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि कैसे आई फेल फॉर दिस प्लेस, और कैसे मेरे अंदर खुद से बाबा ने अपने लिए बिलीफ पैदा किया. सो या बस यही शेयर करना था आपसे. होप यू आर डूइंग गुड, एंड बाय बाय. मैं कुछ कुछ क्लिप्स भी डाल दूंगी यहाँ मेरे पूरे इस यहाँ के विजिट के लिए. एंड या हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.